Hello children, welcome to your English video class. Children, you know that in my previous video, I had started the exercises of your Unit 16 of Superb English Grammar book. This exercise was started a week before and I explained you what this topic is about, what this unit is about. This unit is about prepositions, or you can call position words, and I have explained you what prepositions are, what are position words, where we can use position words, how we use position words. That I explained you in my previous videos and also revised you. Then in my last video I had started the exercise of your book, which was related to a picture, in which you have to go through a picture and you have to then put the underline the correct prepositions. Children, in today's video we will be doing the rest of the exercises. Few exercises we will do today related to, of course, prepositions only, but let's revise what we did in the previous video, in my last video, what I explained. Children, I explained you what preposition is. Preposition is called position word because it tells us the position of noun, in contact with other noun. It tells where the noun is, where the person, place, thing, animal, bird or place is. It tells us the position, and it also tells us the relation of noun with the rest of the sentence. It connects the noun with the rest of the sentence. It comes before noun and it connects that noun with the rest of the sentences. And I have explained you with example. ये मैंने सारा explain किया था. If you have not seen the video, please go through the previous videos of this topic. And today we will start the exercise that is given on page number 68. Page number 68, open your book and we will do this exercise today. This is related to picture and sentences. Some pictures are given and in front of that picture a sentence is written. You have to fill in correct preposition word. You have to put in correct position word in that sentence. There is a blank in that sentence, and in that blank you have to fill in the correct preposition, or you can call position words. Okay, सेंटेंस है, आपके पास ऑप्शन भी है, आप उसमें से करेक्ट ऑप्शन लेकर उस सेंटेंस में आप उस जो ब्लैंक है उसमें आप करेक्ट प्रपोजिशन को लिखेंगे. You can look at the picture also and you will have an idea. So let me write the question first. Look at the picture and choose the correct preposition. The question is, look at the pictures and choose the correct correct prepositions. Okay, so the question says, look at the pictures. You have to look at the pictures and then you have to choose the correct preposition. Okay, and you have to fill in the blank by choosing the correct preposition. Okay, आपको correct preposition use करके आपको blank को fill करना है. First one is, the cup is blank, the glasses. The cup is blank, the glasses. Now children, the options are between and second option is under. Okay. Now look at your book and you can see that there is a table. On that table, two glasses are kept
and a cup is also there. 2 glasses and a cup is there. Now look at the cup, where it is positioned. Where is the position of that cup? उस cup की position क्या है? Where is the cup? ग्लास के से रिलेटेड ग्लास भी है, ग्लासेस है, 2 ग्लासेस हैं और एक कप है. तो वो कप का पोजीशन क्या है इन कॉन्टेक्स्ट टू, इन रिलेशन टू द ग्लासेस? ग्लास के आगे है, ग्लास के पीछे है, ग्लास के नीचे है या ग्लास के बीच में है? कहाँ पर है? आप पिक्चर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आई कैन नॉट ड्रॉ एग्जैक्टली व्हाट इट इज. ग्लास है और ऐसे 2 ग्लासेस हैं और उसके बीच में ऐसे रखा हुआ है. तो द पोजीशन ऑफ द कप इज बिटवीन द ग्लासेस. द कप इज बिटवीन द ग्लासेस. बिटवीन मतलब किसी 2 चीज के बीच में. तो कप का पोजीशन क्या है? बिटवीन द ग्लासेस. ग्लास के बीच में है. द कप इज बिटवीन द ग्लासेस. तो हम चूज करेंगे वर्ड बिटवीन. ओके, द कप इज बिटवीन द ग्लासेस. 2 ग्लास के बीच में वो कप है. ओके, सो इफ यू लुक एट द पिक्चर यू विल डेफिनेटली गेट द आइडिया कि हमें कौन सा प्रपोजिशन वर्ड यूज करना है. पिक्चर में बहुत क्लियर आपको हिंट मिल जाएगा. देन सेकंड वन इज द ट्री is blank the hut. Now look at the second picture. Now here you have to look at the position of the tree. आपको tree का position देखना है. Where is the tree? Tree कहाँ पर है? The tree is dash the hut. अभी hut भी है. hut से related, hut से connect करते हुए देखिए कि ट्री का पोजीशन क्या है इन रिस्पेक्ट टू द हट. वो जो झोपड़ी बनी हुई है या छोटा सा घर बना हुआ है उस रिस्पेक्ट में, उस कनेक्शन में या उससे रिलेटेड आप देखेंगे कि ट्री की क्या पोजीशन है. वो ट्री कहाँ है? चिल्ड्रन ऐसे हट बना हुआ है. ओके, और ट्री कहाँ पर है? हट के पीछे है ना. इट इज ऑप्शन हमारे पास क्या है? बिटवीन एंड बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज के पीछे. तो ये जो ट्री है ये कहाँ है? हट के पीछे है. इट इज बिहाइंड द हट. द पोजिशन ऑफ द ट्री इज बिहाइंड द हट. ट्री है हट के पीछे, बिहाइंड द हट. सो विल चूज दिस वन. चेक बॉक्स में डालेंगे एंड लिखेंगे बिहाइंड. ओके, द ट्री इज बिहाइंड द हट. द ट्री इज बिहाइंड द हट. Then going to wrap this. I hope these 2 sentences are clear. Next, we'll see number 3. Third one, the cat is blank the mat. Now children, you can see that there is a mat I have roughly drawn. You can look into your book. आप अपने book में ध्यान से देख सकते हैं. Just to explain you, I have drawn this rough sketch of a cat. The cat is dash the man. This is man and this is cat. Now, what is the position of the cat? Where is the cat? This is mat
and this is cat. So you have to tell what is the position of this cat in respect to this mat. इस मैट के साथ क्या कनेक्शन है इसका, कैट का? ये मैट के कहां पर है? इट इज ऑन द मैट. कैट कहां पर है? मैट के ऊपर बैठी हुई है ना. यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो. बुक में आप देखेंगे कि कैट कहां बैठी है. कैट जो बैठी है वो मैट के ऊपर बैठी है. सो व्हेन वी हैव टू ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शन है इन और दूसरा है ऑन, तो हम सेलेक्ट करेंगे चेक बॉक्स ऑन. द कैट इज ऑन द मैट. कैट कहां पर है? मैट के ऊपर. द कैट इज ऑन द मैट. द कैट इज ऑन द मैट. ओके. Next is flowers are blank the vase. Options in and on. Okay. The flowers are blank the vase. अब आप देखिए पिक्चर में कि एक वास बना हुआ है. वास इज फ्लावर पॉट. ओके. एंड फ्लावर्स आर प्लांट द वास. फ्लावर्स कहां पर है? वास के कहां पर है? व्हाट इज द पोजिशन ऑफ फ्लावर्स? वेयर आर द फ्लावर्स? वेयर आर द फ्लावर्स? द फ्लावर्स आर इन द वास. द फ्लावर्स आर इन द वास. ओके. जो फूल है वो वास के अंदर है, उसके ऊपर तो नहीं रखे हुए हैं. वो फूल जो है वो वास के अंदर है. उसकी जो स्टिक्स है वो वास के अंदर है. ठीक है. तो फ्लावर्स आर इन द वास. नेक्स्ट. Okay. Now number 5. The vase is blank the table. Now children, you can see there is a table and I'm roughly drawing this. ऐसा बहुत फेयर आप नहीं बना रहे, just to show you the position. Okay. You can see in the picture there the vase is blank the table. Now you have to tell where the vase is. ये vase किधर है? You have to tell the पोजीशन ऑफ द वास. वास की पोजीशन कहाँ है? कहाँ पर है वास? वेयर इज द वास? सो वास इज कहाँ पर है? टेबल के रिलेशन में. टेबल से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि वास कहाँ है? टेबल के ऊपर. यस, द वास इज ऑन द टेबल. द वास इज ऑन द टेबल. तो हमारे ऑप्शंस इन है और ऑन है, तो हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा वाला ऑप्शन? ऑन. द वास इज ऑन द टेबल. यू आर नॉट राइटिंग द ऑप्शंस बिफोर. मैं पहले आपके लिए नहीं लिख दे रही हूँ बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर नाउन इन रिलेशन टू अनदर नाउन बाय लुकिंग एट द पिक्चर. आप पिक्चर देखिए, पहले देखिए कि एक नाउन का क्या पोजीशन है इन रिलेशन टू अनदर नाउन, इन रिलेशन टू अनदर थिंग. यहाँ वास की पोजीशन हमें देखनी है विथ रिस्पेक्ट टू द टेबल.
तो हम टेबल देख रहे हैं कि टेबल से क्या रिलेशन है, जो वाज है वो टेबल के ऊपर है। तो मैं पहले से ऑप्शन वर्ड नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज यू मस्ट फर्स्ट रियलाइज द बाय लुकिंग एट द पिक्चर। आप पिक्चर देख के पहले समझ जाए, तब हम ऑप्शंस को यूज करेंगे। ठीक है, द वाज इज ऑन द टेबल। नाउ लेट्स टेक द अदर वन। Number 6. The girl is standing blank the table. Now children, table is there. एक टेबल बना हुआ है और एक लड़की खड़ी है। ऐसे रफ मैंने बनाया है जस्ट टू शो द पोजीशन। द गर्ल इज स्टैंडिंग डैश द टेबल। ये जो लड़की है ये टेबल के कहाँ पर खड़ी है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस गर्ल विद रिस्पेक्ट टू दिस टेबल? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द गर्ल इन रिलेशन टू द टेबल? टेबल से अगर हम उसको देखें, टेबल के से कनेक्ट करते हुए देखें, तो गर्ल की पोजीशन क्या है? वेयर इज द गर्ल? सो द गर्ल इज नियर द टेबल। द गर्ल इज नियर द टेबल के पास में है ना, वो बिटवीन नहीं है, ऑन नहीं है, अंडर नहीं है, तो वो कहां पर है? नियर द टेबल। द गर्ल इज नियर द टेबल, वो टेबल के पास में है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है नियर का और ऑप्शन है बिटवीन का, बिटवीन होता है दो चीजों के बीच में, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही टेबल था, तो बिटवीन तो हो ही नहीं सकता। बिटवीन मतलब दो चीजें होंगी उसके बीच में, या दो पर्सन होंगे उनके बीच में, कोई भी दो चीज के बीच में बिटवीन आएगा। तो टेबल तो एक ही था, तो बिटवीन तो अदर वैसे भी नहीं हो सकता था। और वो जो गर्ल थी वो टेबल के पास में खड़ी थी, सो वी विल राइट हियर नियर। द गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द टेबल। द गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द टेबल। ओके, Number 7. Don't keep your shoes blank the bed. Don't keep your shoes blank the bed. अब आप देखिएगा कि शूज जो है वो कहीं रखे हुए हैं और मना किया जा रहा है। शूज कहाँ रखे हुए हैं कि एक ऐसा, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट टू एक्सप्लेन यू। Today I'm making just rough drawing, so don't take this as a serious कि कितना खराब ड्राइंग बन रहा है। Just wanted to explain you, okay? This is the bed. हम ये बेड मान के चल रहे हैं, ठीक है? ये एक बेड है और ये शूज यहाँ रखे हुए हैं। What is the position of the shoes? Is it on the bed? Near the bed? It is under the bed. ये शूज कहाँ है? बेड के नीचे रखे हुए हैं, अंडर। जैसे कि अगर मेरे हाथ में बुक है तो दिस चॉक इज अंडर द बुक। चॉक इज ऑन द बुक। ओके, आई टेक दिस डस्टर। द डस्टर इज ऑन द बुक। द डस्टर इज अंडर द बुक। द डस्टर इज ओवर द बुक। डस्टर इज इन फ्रंट ऑफ द बुक। Duster is behind the book. Got it? This is over, this is on, this is under.
Okay, so the shoes are under the bed. So don't keep your shoes under the bed. मना किया जा रहा है कि बेड के नीचे मत रखो, लेकिन रखा हुआ है तो उसी को मना किया जा रहा है कि डोंट कीप द शूज अंडर द बेड. ठीक है, डोंट कीप द शूज अंडर द बेड. नेक्स्ट इज, उसको मैं मिटा देती हूँ ड्रॉइंग को और यहाँ पे ऑप्शंस लिख देती हूँ. आपके पास वैसे ऑप्शंस हैं अंडर और बिटवीन. ठीक है, अंडर का ऑप्शन है और बिटवीन का ऑप्शन है. तो हमें कौन सा चूज करना है? हमें चूज करना है अंडर. डोंट कीप योर शूज अंडर द बेड. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 8. कीप योर शूज, कीप योर शूज blank the shoe rack. ओके, शूज को बेड के नीचे नहीं रखना है, तो कहाँ रखना है? कीप योर शूज ब्लैंक द शू रैक. शू का जो रैक होता है जिसमें कि जूते रखते हैं, तो वहां पर रखने को कहा जा रहा है. तो शू रैक के हम कहाँ रखते हैं? जब शूज रखते हैं शू रैक पर तो कहाँ रखते हैं? उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके आगे, उसके पीछे, कहाँ रखते हैं? वी कीप द शू ऑन द शू रैक, है ना. तो शू रैक बना हुआ है. यू कैन सी देयर इज नो स्पेस हियर बिलो. I'll just tell you, you can see in the book, picture number 8, the shoes are kept in the shoe rack, not on, in the. उसमें बने रहते हैं ना, शेल्फ बने रहते हैं. Shoes are, keep your shoes in the shoe rack, okay, not on, in. Okay, near है हमारे पास ऑप्शन और दूसरा है in. शेल्फ के ऊपर रखते हैं, लेकिन इट इज केप्ट इनसाइड द शू रैक. इनसाइड द शू रैक, ऑन द शेल्फ. समझ में आई आपको बात? इन और ऑन का फर्क. शू रैक है, उसके अंदर रखते हैं, उसके अंदर शेल्फ के ऊपर. लेट मी ड्रॉ फॉर यू. मैं ड्रॉ करके आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा. इन ऑन का फर्क इसमें समझ में आएगा. लेट मी ड्रॉ दिस. ये हम मान के चल रहे हैं कि ये शू रैक है. ठीक है, तो वी कीप आवर शू इनसाइड दिस, इसके अंदर रखते हैं. ओके, वी कीप द शू इन द शू रैक. और ये जो है शेल्फ बने हुए जो इसके अंदर, इसके ऊपर रखते हैं, है ना. वी कीप द शू इन द शू रैक ऑन द शेल्फ, जो उसमें शेल्फ बना रहता है उस पर. ठीक है, द शूज आर ऑन द शेल्फ इन द शू रैक. शू रैक के अंदर शेल्फ है. शेल्फ इज इन द शू रैक. द शेल्फ इज इन द शू रैक एंड शूज आर ऑन दैट शेल्फ. तो यहां पर लिखा है कीप योर शूज इन द शू रैक. तो हम शू रैक के अंदर रखते हैं पर शेल्फ के ऊपर रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. नंबर 9. अब 9 वाले पे चलते हैं. Children, CHILDRN, children should not go blank fire. Okay,
children should not go blank fire. Children, as you can see in the picture, आग जल रही है, वहां पर एक बच्चा है, ठीक है. आई कैन नॉट ड्रॉ दैट बॉय, और वो आग मैं बना नहीं सकती, तो मैं आपको सिर्फ ऐसे पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं कि आग लग रही है, आग जल रही है, और वहां पर एक लड़का बच्चा, छोटा बच्चा है. तो ये बोला जा रहा है कि चिल्ड्रन शुड नॉट गो ब्लैंक फायर. बच्चों को आग के कहाँ नहीं जाना चाहिए, ऊपर, आगे, पीछे, पास, कहीं भी नहीं जाना चाहिए. बच्चों को आग के आसपास रहना ही नहीं चाहिए. तो चिल्ड्रन शुड नॉट गो नियर द फायर, उन्हें आग के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है. चिल्ड्रन शुड नॉट गो, हमारे ऑप्शंस हैं नियर और है ऑन, तो दोनों ही सही है. चिल्ड्रन शुड नॉट गो ऑन द फायर, आग के ऊपर तो खैर किसी को भी नहीं जाना चाहिए, है ना. नोबडी शुड गो ऑन द फायर, और इन द फायर, नोबडी शुड गो इन द फायर, ऑन द फायर, ये तो हो ही नहीं सकता. तो बच्चों के लिए क्या कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन शुड नॉट गो नियर द फायर, बच्चों को आग के पास नहीं जाना चाहिए, जल सकते हैं ना. उनको, बच्चे छोटे होते हैं, ध्यान नहीं देंगे तो वो जल सकते हैं, इसलिए कहा जाता है. तो चिल्ड्रन शुड नॉट गो नियर, ओके. चिल्ड्रन शुड नॉट गो नियर द फायर, बच्चों को आग के पास नहीं जाना चाहिए. नेक्स्ट इज नंबर 10. Sam is standing. Sam is standing blank Jia and Paki. Okay. Sam is standing blank Jia and Paki. अब आप पिक्चर में देखेंगे कि एक लड़का है, वो खड़ा है, और दो लड़कियां हैं जो बैठी हुई हैं, और वो कहाँ बैठी हैं, बेंच के ऊपर बैठी हुई हैं. यू कैन सी 2 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच एंड अ बॉय इज स्टैंडिंग इन क्या पोजीशन है बॉय का, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉय विथ रिस्पेक्ट टू जिया एंड पाकी. जो लड़का है उसका नाम है सैम, और वो जो गर्ल्स हैं इसमें से एक का नाम है जिया और दूसरी का नाम है पाकी, ठीक है. एक जिया है और एक पाकी है, एंड बोथ द गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच. दीज 2 गर्ल्स, जिया एंड पाकी, आर सिटिंग ऑन बेंच एज यू कैन सी इन द पिक्चर. पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दोनों बैठी हुई हैं, और एक लड़का है. वो लड़का कहाँ है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉय. बॉय है सैम, तो सैम का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू जिया एंड पाकी. सो वी हैव टू सी द कनेक्शन ऑफ सैम विथ रिस्पेक्ट टू जिया एंड राकी. उसकी पोजीशन हमें देखनी है विथ रिस्पेक्ट टू जिया एंड पाकी. इट मीन्स पोजीशन ऑफ वन नाउन विथ रिस्पेक्ट टू अदर नाउन इन द सेंटेंस. तो सैम की पोजीशन क्या है, सैम जो है आप फोटो में देख रहे होंगे कि पिक्चर में देख रहे होंगे कि वो उनके सामने खड़ा है. सैम जो है वो उनके सामने खड़ा है. ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, ओके. इज नॉट बिटवीन, ऑप्शन तो गलत दिया है इसमें, नियर और बिटवीन दिया है. ही इज नॉट स्टैंडिंग बिटवीन, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ. Student, you can see in the picture that the boy is standing in front of the girls. He is not standing between them. उनके बीच में नहीं खड़ा है, he is standing in front of them. Options आपके बुक में जो दिए हैं, that is near दिया है और between दिया है, which is not correct. ठीक है? You can see in the picture. Now वो between दोनों के बीच में नहीं खड़ा है, he is not standing between them. He is standing in front of them. उन दोनों लड़कियों के वो सामने, आगे खड़ा है, ठीक है. तो we will take the option in front of. लिख लेते हैं यहाँ पर in front of. Okay, this one. The Sam is standing in front of. ठीक है. In front of Jia and Paki. वो दोनों के बीच में नहीं खड़ा है. अगर खड़ा जहां है वो 2 लड़कियां हैं जहां बैठी, उनके बीच, उनके सामने
उनके सामने खड़ा है और उन दोनों के बीच में उसकी स्टैंडिंग पोजीशन है, ऐसे आप देख सकते हो. बट अदरवाइज ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ जिया एंड पाखी. ओके, बिटवीन हम तब बोलेंगे अगर वो दोनों लड़कियां खड़ी होती और वो उनके बीच में खड़ा होता, या वो उन दोनों के बीच में बैठा होता तो भी हम बोल सकते थे, लेकिन वो उन दोनों के बीच के में खड़ा नहीं है, वो उनके सामने खड़ा है. सो Sam is standing in front of Jia and Paki. Children, we have completed this exercise. ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है. प्लीज गो थ्रू इट. जो नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट आई होप कि पिक्चर है साथ में एंड ऑप्शंस हैं, तो यू वुड बी एबल टू डू दैट. आप आराम से उसे कर पाएंगे. ठीक है, तो अब हम मिलेंगे विद न्यू एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.